Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 5th video of natural resource. As you all know, our series of revision is going on, and in previous part 4 video you have learned the very short revision of very short answer type question from 1 to 25 and a short answer type question from 1 to 7. This is the part 5th video lecture. In part 4 you have learned the short answer type question from question number 1 to 7. In this video lecture you will learn the question number 8 onward. Probably it may be 8 to 15 because I have selected the separate out the top selected question between 8 to 15 so that we can cover overall concept from the question number 8 to 15 in this video lecture. And also you will learn the different kinds of correlated concept that may probably ask as the 5 marks question. Actually the short answer type question may have the 1 marks or 2 marks or 3 marks. 1 marks are actually very short answer type question, but the short answer type question that you are going to study are actually related with the 2 marks or 3 marks question. So this is the series of 2 marks and 3 marks revision. After that we will select the long answer type question. So without delay timing, let back over the board, let back over the question and revise thoroughly each and every questions with respect of question number 8 to 15. In previous fourth video you have learned the question number 1 to 7, and apart from question video number 4, the early 3 video are totally depend with the totally correlate with the very short answer type question. So I hope you have a pen paper in order to note down the important concept regarding the question number 8 to 15. So let I remind you, this is the video number 5 in which you will learn the question number 8 to 15, that is short answer type. So without delay timing, let back over the board in order to revise the question thoroughly. Now the question number 8 onward. Question number up to 7 is over in previous video lecture. The last question of previous video lecture was what are the consequences of global warming. एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. consequence पूछे तो आप क्या लिखेंगे? consequence में आपको लिखना है what are the disadvantages, what are the harmful effects of the global warming. ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. हाउ आर क्लाउड फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिसन, द क्लाउड फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. लिखेंगे कॉपी में, क्लाउड फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ कंडेंसेशन को सही से लिखेंगे कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. कैसे बनता है क्लाउड, ध्यान से सुनेंगे. जैसे पॉन्ड, पडल है, कुछ भी है जो वाटर का सोर्स है, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में जब हीट पड़ेगा तो एलिमिनेट हो जाएगा और स्काई में जा कर के, बादल में जा कर के, ठीक है, आकाश में जा कर के ये कंडेंसेशन मतलब थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा. ठीक है, वहाँ टेम्परेचर जो है जैसे नील होगा, जैसे ही जीरो होगा ये जम जाएगा और ये धुएं के साथ उड़ता चला जाएगा और जहाँ से टेम्परेचर थोड़ा सा कूल पाया ये बरस जाएगा. ठीक है, तो ये कंडेंसेशन होता है जिसको कहते हैं क्लाउड फॉर्मेशन. सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं. सिंपल सा, आप एक जो है गर्म पानी जहाँ से भाप निकल रहा हो, इसके ऊपर एक ठंडा सा कोई बॉटल या फिर कोई दूसरा कोई पॉट लेकर के जाएंगे तो नीचे से पानी टपकना शुरू हो जाएगा. यही कंडेंसेशन है. ठीक है, सो क्लाउड फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये इसका एक लाइन में स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है, इसको आप फुल्ली एक्सप्लेन कर लेंगे अपने लैंग्वेज में. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी, टाउन, विलेज वेयर यू लाइव. कह रहा है कि अगर आप सिटी में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं, चाहे कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ पे मेजर सोर्स वाटर का क्या है. तो ग्राउंड वाटर ही मेजर सोर्स है सबका. ठीक है, ग्राउंड वाटर. सिटी में है तो ग्राउंड वाटर. अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं,
तो पॉन्ड है वहाँ पे, ठीक है, पॉन्ड है, रिवर है, ठीक है, कहीं कहीं वेल भी देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट रूरल एरिया के वाटर सोर्सेज है। लेकिन जनरली अब तो रूरल एरिया में भी ग्राउंड वाटर ही सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है वाटर का, ठीक है, जिस पे आपको फोकस आउट करना है। द फ्रेश वाटर जो है मेनली जो है ग्राउंड वाटर है, लेकिन पॉन्ड, रिवर, वेल ये सब इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ये भी फ्रेश वाटर ही होता है, बट ये इरिगेशन, मोस्टली इरिगेशन पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसी पे आपको फोकस करना है। ग्राउंड वाटर का जो मेन सोर्स है वो सिटी में, टाउन में या विलेज में, वो क्या है, जो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है वो क्या है, ग्राउंड वाटर है, ठीक है। पॉन्ड, पडल, लेक, रिवर ये सब जो है गांव में मिलते हैं। टाउन में मोस्टली आपको रिवर मिल जाएगा, बट ज़्यादातर जो है विलेज में ये एक्टिव और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, ये जनरली जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये जनरली 2 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 लाइन्स में ही क्वेश्चन को निपटा देने रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 लाइन्स में निपटा देने रहते हैं। तो सॉइल इरोजन को कैसे डिफाइन करेंगे, द डिग्रेडेशन ऑफ upper layer of earth crust, upper layer of earth crust called soil erosion। क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अपर लेयर अर्थ क्रस्ट का जो डिग्रेड होता है ना, उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट आर द 2 फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि ऑक्सीजन के 2 जो फॉर्म है वो एटमॉस्फेयर में बताना है, कि ऑक्सीजन के 2 फॉर्म जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ये कौन से 2 फॉर्म है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल है, जो 21% तक एटमॉस्फेयर में रहता है, 21% तक, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। पहले लिखेंगे इट इज़ इन फॉर्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल, it is in form of O2 molecules, and second form of oxygen is O3 molecules, that you are well familiar with the O3 molecule, that is commonly known as ozone. So oxygen in the atmosphere may be in form of oxygen molecules, or in form of the O3 molecule, that is in form of ozone। ओजोन कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फियर्स में और ट्रोपोस्फियर्स में। ट्रोपोस्फियर्स में बैड ओजोन होता है, स्ट्रेटोस्फियर्स में गुड ओजोन होता है। ये हार्मफुल इफेक्ट देता है और ये अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करता है, ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल डू यू नो। आप कितने तरह के सॉइल के बारे में जानते हैं। देखो, सॉइल जो है उसके कंपोजिशन के बेस पे बहुत तरह की होती है। फॉर एग्जांपल द क्ले सॉइल, ठीक है, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, इसके बाद होता है सिल्टी सॉइल, ठीक है, इसके बाद होता है लोमी सॉइल, एलुवियल सॉइल। ये सब सॉइल के क्या है, टाइप है, ये सब सॉइल के टाइप है। इसके अलावा बहुत सारे और सॉइल होते हैं जो उसके बेसिक सोर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे रेड सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल ये कॉटन के लिए अच्छा माना जाता है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल है जिसको आपको जानना है। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फोकस करना है वो क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल, लोमी सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसमें जो है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ये सब सॉइल के अलग अलग टाइप हैं। ये किस बेस पे टाइप बनाया गया है, उसके लोकेशन पे, कलर के, प्रॉपर्टी के बेस पे, और मिनरल्स जो प्रेजेंट है उसमें उसके बेस पे। और ये क्या, उसके टोपोग्राफिक बेस पे, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स है उसमें मेजॉरिटी किस पार्टिकल्स का है, क्ले का है, सैंड का है, सिल्ट का है, लोम का है, एलुवियल का है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग जो है
टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया गया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 12 आराम से आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉइंट पॉइंट जो है सारा पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। व्हाट इज एयर, व्हाट आर इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो एयर को आपको डिफाइन करना रहता है और इम्पोर्टेंट भी है। एयर को कैसे डिफाइन करेंगे, द मिक्सचर ऑफ various gases in atmosphere called एयर। अब मेन कंपोजिशन क्या है एयर का, आगे पूछ रहा है व्हाट आर इट्स मेन कंपोजिशन। सो मेन कंपोजिशन मेनली इसमें एयर में होते क्या क्या है, एयर कंसिस्ट द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मोस्टली द एयर में कंसिस्ट द वायरस, एयर में कंसिस्ट द बैक्टीरिया, एयर में कंसिस्ट द फंगाई और स्पोर्स ऑफ फंगस, pollen grain, etc. These are the biotic components. Abiotic components may be the different kinds of gases, dust, smoke. These are the carbon ash. These are the different kinds of the abiotic and biotic components that is known as the एयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। बायोटिक और एबायोटिक इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हमने एयर को डिफाइन कर दिया, ऊपर आप एयर का डिफिनीशन आपको मिल गया पूरा अच्छे से। ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स, और ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये एयर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो एयर के डिफिनीशन में मोस्टली ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये 2 to 3 मार्क्स में आएगा। तो इतना जितना स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इतना लिखना रहेगा। ठीक है, कुछ और बाकी चीज़ें आप ऐड नहीं करेंगे, अगर ऐड करने लायक रहेंगे तभी ऐड करेंगे, अदरवाइज सिर्फ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट ही लिखा जाता है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। डिस्क्राइब डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एयर एंड वाई इज ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है एयर के डिफरेंट फंक्शंस को आप लिखेंगे, बताएंगे। तो एयर के बहुत सारे फंक्शन हैं। फॉर एग्जांपल एयर कंसिस्ट the different kinds of gases like carbon dioxide, oxygen that responsible for photosynthesis. Carbon dioxide responsible for photosynthesis and oxygen responsible for respiration. Oxygen responsible for respiration. Air consists the nitrogen that responsible to enhance the nutrients in soil. Listen, 4. Air form the blanket over earth. अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एयर का एक ब्लैंकेट है विच मेंटेन द, that is the main function of air is to maintain the weather like temperature, humidity, rain, everything is maintained by the air. So air sometime act as the insulating agents just above the earth atmosphere, so that air is important to us. Why oxygen is essential for living organisms? लिसन केयरफुली, इससे पहले जो भी लिखा था सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ऑक्सीजन का रोल क्या है, ऑक्सीजन प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू ब्रेक द ग्लूकोज molecule in cell and provide energy. Keep in mind, the oxygen
react over the glucose molecules and splits into different byproduct and form the energy. मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. 6 molecule of oxygen react with 1 molecule of glucose C6H12O6 और क्या बनाता है 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water plus energy. This carbon dioxide released out into atmosphere. This water either utilized in the body or released out in form of tear, urine, saliva, etc. While the energy responsible to perform the different kinds of works or different kinds of functions. So this phenomenon is known as oxidation. This is the oxidation, and that is commonly known as respiration. So respiration involved in the utilization of oxygen to break down of glucose into carbon dioxide, water and energy. So oxygen is responsible for the oxidation of different kinds of food molecules inside the body. तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे. डिस्क्राइब द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड परफॉर्म CO2 perform the process of photosynthesis, that is 6 molecule of CO2, 6 molecule of H2O to form the C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen. This will released out and this will utilize. एक्चुअल में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ये सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और उसमें जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में ये पूरा काम करते हैं. ये पूरा फिनोमिनन, ये पूरा प्रोसेस जो दिख रहा है, ये पूरा प्रोसेस बोला जाता है इसको फोटोसिंथेसिस. क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, तो लिखेंगे कॉपी में, कार्बन डाइऑक्साइड परफॉर्म द photosynthesis in the plant's body which is responsible to synthesize the glucose molecule C6H12O6 and release the oxygen in the atmosphere. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस आउट करने हैं और साथ साथ ये पूरा प्रोसेस लिख लेना है. तो फोटोसिंथेसिस का मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. यूटिलाइजेशन ऑफ carbon dioxide and water in the synthesis of glucose in presence of chlorophyll and sunlight. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको फोकस आउट करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का रोल हो गया. तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, हम इस वीडियो लेक्चर में कितना से पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 8 to 15 तक. ये पार्ट 6 वीडियो था. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किसकी स्टडी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड क्वेश्चन. ठीक है, इन फर्स्ट वीडियो लेक्चर you have learned the question number 1 to 7. In second video lecture you have learned to 8 to 18. कीप इन माइंड ये सब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था. ठीक है, इसके बाद थर्ड वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था, 19 to 25 को रिवाइज किया था, ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था. ठीक है, इसके बाद फोर्थ वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप शुरू किए थे फोर्थ वीडियो में, और फोर्थ वीडियो का जो कॉन्स्टिट्यूएंट था वो 1 to 7 था. फोर्थ वीडियो का पार्ट 1 यानी कि ओवरऑल जो फोर्थ वीडियो था जिसमें हमने क्या लिखा था, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, और फिफ्थ वीडियो में 8 to 15 था. ठीक है, और ये हमारा 6 वीडियो था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 1 to 7 ये फोर्थ वीडियो था. फिफ्थ वीडियो जो था वो क्या था, 8 to क्वेश्चन नंबर जो पार्ट जो 4 था, जो पार्ट 4 था जिसमें हमने पढ़ा था 1 to 7. ये ओवरऑल 1 2 3 ये 3 पार्ट में थोड़ा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था. क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 4 था उसमें 1 to 7 पढ़ा था, और ये पार्ट नंबर 5 था जिसमें हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा 8 to 15 वीडियो. ठीक है, ये 8 to 15 वीडियो हमने पढ़ा था.
अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी पार्ट 6 में क्या पढ़ेंगे, 16 ऑनवर्ड हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।